Now we will discuss about integrations by partial fractions. So जो method of integrations है, so that is integrations by substitutions, integration by parts as well as integrations by partial fractions. अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, so that is integrations by partial fraction. Partial fractions में क्या है, देखो first of all you will think about rational number. So this is rational number क्या होता है? So they are of two types. So one is proper rational number, another one is improper rational number. So this is proper, and so this is improper. Proper means, so this is 1 by 2, so this is 2 by 3, 3 by 7, here 4 by suppose 13, so like this. And improper is what? So this is 2, 3, 1, here 4, so this is 5 by 2, so this is 7 by 3, and so this is 12 by here, so this is 12 by 5, like this. ठीक है, clear? So proper rational number means क्या? Magnitude of numerator is less than the denominator, and this one will provide you. So that is what? So this is partial fraction. But in case of a function, what you'll do here, in case of a function, so that means क्या? जो degree of numerator is less than the degree of denominator. जैसा like this. So this is 1 by x plus 1. ठीक है, and so this is, suppose if you consider, so this is x plus 1, and so this is x square plus 4, and so this is 3x square plus 7x plus 2, and so this is x plus 1, and so this is x plus 2, and so this is x plus 3. Yeah, so these are partial fractions. So that means degree of numerator is less than the degree of denominator, nothing else. Degree of numerator 0, this is 1. Degree of numerator 1, this is 2 है. Degree of numerator 2 and degree of denominator, so that is 3 है. Clear? So this is called partial fractions, and so this is known as, so this is partial fraction. Now, so this is type 1. Integral is of the form integrations fx by x plus a by x plus b dx, where degree of fx is less than or equal to 1. तो यार इन पे degree of denominator is 2 है, so degree of fx either 1 हो सकता है नहीं तो 0 हो सकता है. Suppose if you get a question is like this, so that time you will write, so this is x by x plus 1 into x plus 3, so that is equal to, you will write, so this is a by x plus 1, and so this is b by, so this is x plus 3 है. And then what you do, you take LCM, so you will get, so this is a into x plus 3, and so this is b into x plus 1. ठीक है, क्लियर? एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ए पार्ट कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? एंड सो व्हेनेवर यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, इसको जीरो करना है. सो दिस इज पुट x इक्वल टू -1, ए जीरो हो गया. सो दिस इज 2a इक्वल टू -1, सो a का वैल्यू क्या है? सो दैट इज -1/2 है. Again put, so this is x equal to -3, so this is -3, so that is a 0 है. So this is -2b equal to is what? So this is -3. So yeah, so it will get, so this is b equal to, so this is 3/2 है. Suppose if you consider, so like this is 1, the given integral 1, so this is reduces to, so this is a by, a is what? Now so this is minus half, so this is dx by x plus 1, and so this is 3/2, so this is dx by x plus 2 है. And then what will do, so this is minus half log of, so this is x plus 1, and so this is 3/2, so this is log of x plus 2, so this is plus c है. Clear? So type 1 में, so you will proceed like this. Now, whenever you will get these types of integral, तो यार some idea friends, these types of integral जब solve करोगे, ये आप partial fraction से भी कर सकते हो और sequence series का concept से भी आप कर सकते हो. Suppose sequence series में whenever you will get like this 2 into 3, so you can write 1/2 minus 1/3 है. इन दोनों का बीच में जो छोटा है उसको पहले लिखना x plus 2 and greater 1 को बाद में लिखना. x plus 4 numerator 1, so like this dx. ठीक है, इंटीग्रेशन, ये दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है? दैट इज 2. सो हियर यू विल राइट 1/2. सो दिस इज log of x plus 2, this is log of x plus 4. So obviously you can write, so this is log of x plus 2, and so this is log of x plus 4 plus c है. You can write like this. And so whenever you will get these types of integral, so what you will write? You will write the numerator as a difference of these two. So this is x plus 3 minus x plus 1. And clear? So what will get? So this is x plus 1, so this is x plus 2, this is x plus 3, and so this is dx. Clear? इन दोनों का बीच में difference क्या है? 2 है. So this is 1/2. And then what will do? This by this. Clear? So what will get? So this is dx by x plus 1 into x plus 2, and so this is 1/2. So this is dx by, so this is x plus 2, and so this is x plus 3.
ठीक है, एंड देन व्हाट विल डू, क्लियर, सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सो दैट इज 1 है, सो दिस इज 1/2 log ऑफ, सो दिस इज पहले छोटा फंक्शन एंड देन ग्रेटर 1, ठीक है, माइनस 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है, सो दिस इज log ऑफ, सो दिस इज x plus 2 एंड सो दिस इज x plus 3 plus c है, नथिंग एल्स. इफ यू आर क्लियर नो दिस मेथड, ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ इंटीग्रल विदाउट पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. Now, whenever you will get integrations dx by x minus 1 into x minus 2 का whole square, clear? So type 2 integral is of the form so like this. यहीं पे कि देखो डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर में जो fx है उसका डिग्री आइदर 2 होगा और 1 होगा और 0 होगा, क्लियर, तो पार्शियल फ्रैक्शंस होगा, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज लाइक दिस. देखो यहीं पे तो मैंने कुछ नहीं रखा, सो यू कैन राइट, ठीक है, आपको क्या करना होगा ये आपको देखना है. सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट, clear, 1 by x minus 1 and x minus 2 का whole square. So this is a by x minus 1, b by x minus 2 and so this is c by x minus 2 का whole square. And if you take the LCM, so like this. So this is x minus 1 into x minus 2 का whole square. So this is a into x minus 2. So b into x minus 1 into x minus 2 plus c into x minus 1. Clear? So this is so like this. अभी डिनोमिनेटर क्या हो रहा है देखो, so this 1 is equal to what to write, a into देखो डिनोमिनेटर कैंसिल, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस b into x minus 1 x minus 2 प्लस c into x minus 1 है, ये आपको समझना है, ठीक है. अभी यहीं पे क्या करना है देखो, सपोज a का वैल्यू फाइंड करना है, सबको 0 करना है, सो दिस इज पुट x इक्वल टू 1, x जब 1 है a0 तो 1 minus 2 minus 1 का स्क्वायर, सो दैट इज 1, तो a का वैल्यू 1 है, ठीक है. एंड सपोज मैंने x इक्वल कर जगह पे 2 पुट कर दिया, देखो जब x का जगह पे 2 पुट करूँगी तो 0 हो जाएगा, 2 minus 2 ये भी 0 हो गया, ठीक है, क्लियर, ये भी तो 0 हो गया, सो दिस इज x minus 2, सो दिस इज c इज ऑल्सो 1 है, ठीक है, क्लियर. अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट इज क्या है, सपोज मैंने यहीं पे, क्लियर, सो दिस इज कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लो दोनों साइड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो, ना तो एक्स का जगह पे 0 पुट कर सकते हो, ए भी पुट कर सकते हो, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर तो कुछ नहीं है तो 0 लोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, सो दिस इज a प्लस बी इक्वल टू 0, सो दिस इज b का वैल्यू क्या है माइनस a, सो दैट इज माइनस 1 है, ठीक है. ये जो इंटीग्रल है, सो दैट यू कैन से द गिवन इंटीग्रल reduces to, ठीक है, द गिवन इंटीग्रल reduces to what to write, so this is देखो a का a मीन्स क्या, सो दैट इज 1 dx by x minus 1, b का वैल्यू क्या है, सो दिस इज dx by x minus 2 एंड c का वैल्यू क्या है, सो दिस इज ऑल्सो, ठीक है, सो दिस इज dx by x minus 2 का होल स्क्वायर, लॉग ऑफ दिस, सो व्हाट यू गेट, सो दिस इज लॉग ऑफ x minus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 2 plus c है, ठीक है, nothing else. If you know this method, within a few seconds you can. Now type 3, whenever you will get these types of integral is of the form integrations fx by x plus a into x square plus b dx, where degree of fx, देखो डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री जो होगा वो 3 से कम होगा तो पार्शियल फ्रैक्शंस होगा, तो 3 से कम क्या है, डिग्री 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है. तो सपोज इफ यू गेट क्वेश्चन इज लाइक दिस, सो दिस इज x plus 2 and so this is what x minus 1 and so this is x square plus 4, so this is dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, now you will write, so this is x plus 2 by x minus 1 into x square plus 4, so linear है तो you will write like this x minus 1 and here bx plus c and so this is x square plus 4 है. जैसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x square plus bx plus c, क्लियर, so whenever you will differentiate this one 2ax plus b फॉर्म में होते हैं, इसीलिए जो न्यूमरेटर है, क्लियर, इसको इस फॉर्म में लिखना है bx plus c है, एंड देन व्हाट विल डू, क्लियर, सो यू विल राइट, सो दिस इज x minus 1 into x square plus 4, so this is a into x square plus 4 and so this is bx into x minus 1 plus c into x minus 1. So what will get, so this is देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर, so this is डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दिया, a into x square plus 4 plus bx into x minus 1 plus c of x minus 1, ठीक है. तो ये अभी हमें क्या है, ए बी सी को फाइंड करना है, ये जब फाइंड करना है इन लोगों को 0 करो, सो दिस इज पुट x इक्वल टू 1, तो ये 0 हो गया, 1 plus 4 5a इक्वल टू इज 1, सो दैट इज 3, तो ए का वैल्यू क्या है ना 3/5 है,
अभी पुट x इक्वल टू 0 सपोज x 0 है, ये बार तो 0 हो गया, तो यहीं पे क्या है 4a माइनस सी, 4a माइनस सी, सो दैट इज इक्वल टू 2 है। c का वैल्यू क्या है ना 4a माइनस 2, a का वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, सो दिस इज 12/5 माइनस 2, सो दिस इज 2/5 है। ठीक है, अभी यहीं पे देखो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ले लो, सो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, यहीं पे इधर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन व्हाट विल गेट, सो दैट इज 0 है। इस पे क्या हो रहा है a, दिस इज प्लस b, सो दिस इज a प्लस b इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्या है ना माइनस a, सो दिस इज माइनस 3/5। Suppose if you consider, so this is the given integral 1, so this is reduces to here, so इस पे पहले लिखना है a का वैल्यू क्या है, so this is 3/5 dx by x minus 1, and so this is bx, b का वैल्यू क्या है माइनस 3/5, so this is x by x square plus 4, and c का वैल्यू क्या है 2/5, so this is dx by x square plus 4 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/5 log of x minus 1, एंड इसका डेरिवेटिव क्या है, सो दैट इज 3/10, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज log of x स्क्वायर प्लस 4, एंड इसका क्या होगा, सो दिस इज 1/2 1/5, सो दिस इज tan इनवर्स x/2 प्लस c है। बस नथिंग एल्स, आपको और कुछ नहीं करना, यही करना है। ठीक है, नाउ इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी टी एक्स, क्लियर। सो दिस इज टाइप 4। जब भी इस टाइप का इंटीग्रल होगा आपको क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब लेकिन आप कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करोगे, एज इट इज ऐसा ही छोड़ दोगे। क्लियर, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सो व्हाट विल राइट हियर, सो दिस इज टी प्लस 1, एंड सो दिस इज टी प्लस 2, एंड सो दिस इज टी प्लस 3 है। सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट ए बाई टी प्लस 2, एंड सो दिस इज बी बाई टी प्लस 3 है। And then what you'll do, you take LCM, so this is t plus 2, and so this is t plus 3 है। and then what you'll do, so this is a into t plus 3, so this is b into t plus 2 है। clear, then what you'll get, so this is t plus 1 equal to a into t plus 3 है, t plus 3, so this is plus 3, and so this is b into t plus 2 है। अभी क्या करोगे, जब इसका वैल्यू फाइंड करना है इसको जीरो करोगे, सो दिस इज पुट t इज इक्वल टू -2, सो व्हाट विल गेट, t जब -2 है तो ये तो जीरो हो गया, सो दिस इज a इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू जब -3 है, a जीरो हो गया, -3 प्लस 2, सो -b इक्वल टू -2, सो दिस इज b का वैल्यू 2 है। क्लियर, सपोज इफ यू कंसीडर दिस इज नंबर 1, सो द गिवन इंटीग्रल 1 रिड्यूसेस टू, ठीक है, इंटीग्रेशंस a का वैल्यू क्या है, सो दिस इज dx एंड t प्लस 2, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड b का वैल्यू क्या है, सो दिस इज dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, सो व्हाट विल राइट, सो दिस इज -1/√2 tan इनवर्स x by √2, and so this is 2/√3 tan inverse x by √3, so this is plus c है। क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या था ना, सो दिस इज टाइप 4, इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, सो दिस इज अ part of a partial fractions, everything depends. Now this is type 5 integrations by partial fractions. Integral is of the form so like this, x square plus a into x square plus b by x square plus c into x square plus d dx। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है। क्लियर, सो लाइक दिस, ऐसा ही एक क्वेश्चन सोचो। क्लियर, एक्स स्क्वायर का जगह पे टी पुट किया, देखो न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, तो ये क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं है, तो आपका फर्स्ट एम है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस करना है। कैसे, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना है। सो लाइक दिस, इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर, डिवाइड देखो 70 से 3t डिवाइड माइनस करो, क्लियर 40 माइनस करो, सो दैट इज 3t, एंड सो 12 से 4 माइनस करो, दैट इज 8। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस में है। ठीक है, 40 प्लस 8 बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 ए बाई दिस। सो अभी जब ए का वैल्यू फाइंड करना है, इसको जीरो करना है, टी इक्वल टू -3, सो दिस इज व्हाट, ए इज इक्वल टू -12 प्लस 8, सो दैट इज -4, एंड टी का वैल्यू जब -4 है, टी का वैल्यू जब -4 है, क्लियर, बी फाइंड करना है, सो दिस इज -b, -16 प्लस 8, सो दैट इज व्हाट -8 है, तो बी का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो यार बी का वैल्यू 8, एंड देन व्हाट विल डू ना, तुम्हें ये करना है, ये जो गिवन इंटीग्रल है, ए इंटीग्रल, इसका जगह पे आपको ए लिखना है। ठीक है, तो यार इसका जगह पे आपको क्या लिखना है, देखो क्लियर, सो लाइक दिस, इसका जगह पे, सो व्हाट विल राइट, क्लियर, सो ए बाई टी प्लस 3 एंड बी बाई टी प्लस 4 है। सो दिस इज द गिवन इंटीग्रल रिड्यूसेस टू, सो दिस इज द गिवन इंटीग्रल reduces to
ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन, सो दिस इज डी एक्स माइनस, ठीक है, यहीं पे क्या लिखोगे, सो दिस इज डी एक्स बाई, सो यहीं पे जो था इसका जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू 8 है, ठीक है। सो दिस इज -4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू सो दैट इज 8 है, सो दिस इज +8 एंड सो दिस इज डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या करोगे, देखो, सो दिस इज इसका इंटीग्रेशन से एक्स है, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 4/√3 tan इनवर्स, सो दिस इज x/√3 एंड हियर माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज 1/a, सो दिस इज 4 tan इनवर्स, सो दिस इज x/2 प्लस c है, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर। यही आपको करना है, ठीक है, क्लियर। यही 5 टाइप्स है क्लियर इंटीग्रेशन। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 फर्स्ट क्वेश्चन से x/x+1 इंटू एक्स प्लस 2dx है, ए पार्शियल फ्रैक्शंस है, सो इसको कैसे लिखोगे, सो दिस इज x+1 इंटू एक्स प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, a/x+1 एंड सो दिस इज बाई b/x+2 है, क्लियर। एंड देन व्हाट टू डू, यू टेक एलसीएम x+1 एंड x+2, सो दिस इज a इंटू एक्स प्लस 2, सो दिस इज b इंटू एक्स प्लस 1, so this implies that x equal to a into x plus 2, so b into x plus 1 है, ठीक है। अभी पुट, सो दिस इज x इक्वल टू -1, a का वैल्यू जब फाइंड करोगे इसको 0 करोगे, सो दिस इज -1, a का वैल्यू -1, x इक्वल टू -2, सो दिस इज -v इक्वल टू -2, सो दिस इज b का वैल्यू 2 है, ठीक है, क्लियर। नाउ द गिवन इंटीग्रल, सपोज दिस इज 1 है, ठीक है, सो टू राइट द गिवन इंटीग्रल 1 reduces to, so to write integration, ये लाइन को लिखना है, a का वैल्यू क्या है ना -1, सो दिस इज dx बाई एक्स प्लस 1 एंड b का वैल्यू क्या है, सो दिस इज dx बाई, सो दिस इज x प्लस 2 है, and obviously you can say, so this is minus log of x plus 1 plus twice log of, so this is x plus 2 plus c है, बस nothing else, ठीक है, क्लियर। यही आपको इसी तरीक़ा से इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। Now NCERT exercise 7.5 का second question, dx by x square minus 9, so to write, so this is you will write x minus 3 and x plus 3, ठीक है। यहीं पे सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट, पहले छोटा को लिखोगे एंड देन ग्रेटर 1, न्यूमरेटर 1, ठीक है, बीच में माइनस साइन, ठीक है, एंड देन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 6 है, तो 1/6, ठीक है। सो इट विल राइट, सो दिस इज 1/6 लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस x माइनस 3, सो दिस इज बाई x प्लस 3 प्लस c है, बस नथिंग एल्स, आपको और कुछ नहीं करना। नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 ए क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 1 बाई दिस, देखो ये पार्शियल फ्रैक्शंस का फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसा करके लिखोगे, सो दिस इज बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 x minus 3 a by x minus 1, so this is b by x minus 2 and c by x minus 3 है, ठीक है। and then what you'll do, so you will write 3x minus 1 equal to a into x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x minus 2 है। अभी a फाइंड करना है, दोनों को 0 करना है, so this is put x equal to 1, देखो ये दोनों 0 हो गया, 1 minus 2 minus 1 और minus 3 minus 2, so this is 2a equal to 2 है, तो a का वैल्यू 1 है। अभी b का फाइंड करना है, तो ये दोनों को 0 करोगे, सो दिस इज x इक्वल टू 2 पुट कर दो, सो दिस इज 2 minus 1 1, 2 minus 3, सो दिस इज माइनस b, सो दिस इज 6 minus 1 5 है, सो b का वैल्यू -5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, सो दिस इज x का जगह पे आप 3 पुट कर दो, तो a 0 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, 2c इक्वल टू 9 minus 1 इक्वल टू 8, सो c का वैल्यू क्या है, सो दैट इज व्हाट 4 है। अभी इस इंटीग्रेशन का जगह पे a आपको लिखना है, सो द गिवन इंटीग्रल reduces to a का वैल्यू क्या है, सो दिस इज dx बाई एक्स माइनस 1, b का वैल्यू -5 dx बाई एक्स माइनस 2, c का वैल्यू 4, सो दिस इज dx बाई एक्स माइनस 3 है, सो दिस इज log ऑफ x माइनस 1 -5 ऑफ log ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 ऑफ log ऑफ x माइनस 3 प्लस c है, बस नथिंग एल्स, यही आपको लिखना है। व्हेनेवर यू विल गेट दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू विल सॉल्व लाइक दिस वे। Now, so this is a question NCERT exercise 7.5 questions number 4, clear। this is partial fraction, देखो ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 3 है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, x बाई, सो यू विल राइट x minus 1 x minus 2 x minus 3, so this is what you write x by this
ठीक है, एंड व्हाट विल राइट, सो दिस इज b बाई एक्स माइनस 2 एंड c बाई एक्स माइनस 3 है, एंड देन व्हाट विल डू, x इक्वल टू यू विल राइट x माइनस 2 x माइनस 3 एंड b इज व्हाट x माइनस 1 x माइनस 2, c इज व्हाट b इज x माइनस 3 एंड c इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2 है। e का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को जीरो करना है, सो दिस इज पुट x इक्वल टू 1, दोनों जीरो हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2, सो दिस इज 2a इक्वल टू 1, ठीक है, सो दिस इज a का वैल्यू हाफ है, x इक्वल टू 2, a दिस इज 0 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, सो दिस इज माइनस b इक्वल टू 2 है, सो दिस इज b का वैल्यू 2 है, एंड सो दिस इज x इक्वल टू 3, दिस इज 0 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1, सो दिस इज 2c इक्वल टू 3 है, सो c का वैल्यू 3/2 है। क्लियर, इस इंटीग्रेशंस का जगह पे आपको a लिखना है, सो ऐसा करके लिखोगे द गिवन इंटीग्रल, सो दिस इज रिड्यूसेस टू, ए का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ, सो दिस इज dx बाई एक्स माइनस 1, बी का वैल्यू, सो दिस इज dx बाई एक्स माइनस 2, सी का वैल्यू, सो दिस इज dx बाई एक्स माइनस 3 है, सो दिस इज हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 1 ट्वाइस log ऑफ x माइनस 2 प्लस 3/2 log ऑफ x माइनस 3, सो दिस इज प्लस c है, बस नथिंग एल्स। इसी तरीका से इस टाइप का क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। Now, so this is a questions from NCERT exercise 7.5, questions number 5, 2x by this, clear। So ऐसा नहीं है कि जब भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको पार्शियल फ्रैक्शंस का हेल्प लेना है, लेकिन देखो, सो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 3, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, सो दिस इज 2x प्लस 3 एंड सो दिस इज माइनस 3 एंड सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, so this is what, clear, so what will get 2x plus 3 and so this is what will get, so this is x square plus 3x plus 2 dx minus 3 by dx, इसको फैक्टर कर लो, so this is x plus 1 into x plus 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो दिस देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो dt by t log t एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो आपको अच्छा से ही पता चल गया, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस c, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर, यही मेथड आपको अप्लाई करना है और कोई मेथड नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इस मेथड का हेल्प लेकर यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.5 NCERT, इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू दिस, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी क्या करोगे, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई दिस, सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 2x माइनस 1 dx माइनस, सो दिस इज dx बाई एक्स इंटू 2x माइनस 1, देखो ये इसका साथ कैंसिल है, सो व्हाट विल राइट हियर, सो x कैंसिल, हाफ इंटू, सो दिस इज 2x, इसे लिखो 2x माइनस 1 प्लस 1 बाई, सो दिस इज 2x माइनस 1 एंड सो दिस इज, ये दोनों में क्या करना है देखो, सो लाइक दिस, सो दिस इज पहले छोटा फंक्शंस, ठीक है, एंड देन ग्रेटर 1, सो दिस इज 2x माइनस 1, इसका ऊपर 2 लिख दो, सो दिस इज 2x माइनस 1, ठीक है, एंड सो दिस इज 1, देखो ये 2x कैंसिल, माइनस 1, सो इसको हम, ठीक है, सो व्हाट विल गेट, सो इसको प्लस कर देना, सो यू विल गेट दिस, ठीक है, अभी इसको सेपरेट करो, सो दिस इज हाफ ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 dx, ठीक है, सो दिस इज dx और ये क्या होगा, प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई 2x माइनस 1 dx, ठीक है, सो दिस इज हाफ, इसका इंटीग्रेशन दिस, इसका क्या होगा, सो दिस इज log ऑफ, सो दिस इज 2x माइनस 1, सो दिस इज बाई 2, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज log x माइनस ये क्या होगा, सो दिस इज, देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 1, सो दिस इज log ऑफ, सो दिस इज 2x माइनस 1, सो दिस इज प्लस c, नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर, जब अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, सो माय डियर फ्रेंड्स यू कैन सॉल्व दिस वेज, ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, इफ यू क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर इट, प्रैक्टिस improve your quality, practice improve your standard, practice improve your skill, practice improve your strength, practice improve your muscle power in the subject, practice will make you a master in board as well as JEE exam, the more you practice the more you get, the more you practice and study the better you are, excellence is an art, it is the regular habit of practice. This is a questions from NCERT exercise 7.5, questions number 7, x by x square plus 1 into x minus 1 dx, so this, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, so this is x by x minus 1 into x square plus 1,
So this is what a by x minus 1, and so this is bx plus c, and so this is by x square plus 1. So this implies that what to write LCM ले लो, x equal to a into x square plus 1 plus bx into x minus 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1. ए का वैल्यू फाइंड करना है. पुट एक्स इक्वल टू 1, ए जीरो हो गया. 1 प्लस 1 2, 2a इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू 1/2 है. ठीक है. अभी क्या करना है देखो, फिर व्हाट विल राइट, सपोज एक्स का जगह पे 0 पुट कर दो. दिस इज ए, ये तो 0 हो गया, तो ये क्या होगा, माइनस सी इक्वल टू 0 है. सो दिस इज ए का वैल्यू सी, सो दैट इज हाफ है. ठीक है. अभी क्या करना है देखो, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर आप कंपेयर कर लो. सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर तो नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. क्लियर. सो इधर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, यहीं पे क्या है, सो दिस इज प्लस बी इक्वल टू 0. सो बी का वैल्यू क्या है, माइनस ए, सो दैट इज माइनस हाफ है. ठीक है. अभी इंटीग्रेशंस का, इस इंटीग्रेशंस का जगह पे आपको ए लिखना है बस. ठीक है. सो द गिवन इंटीग्रल, सो दिस इज रिड्यूसेस टू, सो दिस इज ए का वैल्यू क्या है ना, ए का वैल्यू हाफ. सो दिस इज डी एक्स बाई एक्स माइनस 1, बी का वैल्यू माइनस हाफ. सो दिस इज एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड सी का वैल्यू इज हाफ. ठीक है. सो दिस इज डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. बस ये तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये क्या होगा, सो दिस इज 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी है. ठीक है. क्लियर. सब यही आपको समझना है, नथिंग एल्स. ठीक है. क्लियर. इसी तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शंस का सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. Now NCERT exercise 7.5, x dx by x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है. जब भी क्लियर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप कैसे प्रोसीड करना है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, a बाई एक्स प्लस 2, सो दिस इज b बाई एक्स माइनस 1, एंड सो दिस इज c बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. एंड देन व्हाट विल डू, सो दिस इज x इक्वल टू a इंटू, clear. So here x minus 1 का होल स्क्वायर, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू, ठीक है. सो दिस इज x प्लस 2 है. ठीक है. एंड देन जब इसको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सो दिस इज पुट x इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों 0 हो गया. -2 -1 -3 का स्क्वायर, 9a इक्वल टू -2, a का वैल्यू -2/9. ठीक है. एंड x का वैल्यू सपोज 1 पुट कर दो, x जब 1 है, a 0 है, a 0 हो गया. सो दिस इज 3c इक्वल टू 1, सो c का वैल्यू 1/3 है. ठीक है. अभी क्या है देखो, हमें b का वैल्यू चाहिए, ऐसा छोटा एक वैल्यू आप कंसीडर कर लो. ठीक है. क्लियर. सपोज हमने ये फाइंड करे, सो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहीं पे तो कुछ नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 0 है. सो दिस इज a प्लस बी इक्वल टू 0, सो दैट इज व्हाट, b इक्वल टू माइनस a, सो दिस इज 2/9 है. ठीक है. सो द गिवन इंटीग्रल, so this is given integral, so this is reduces to, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू -2/9, so this is dx by x plus 2, and b का वैल्यू क्या है, so this is 2/9, so this is dx by x minus 1, and c का वैल्यू क्या है, so this is 1/3, so dx by x minus 1 का होल स्क्वायर. So what to write, -2/9 log of x plus 2, so this is plus 2/9 log of x minus 1 minus 1/3 x minus 1 plus c है, बस nothing else. ठीक है. You will proceed like this, so whenever you will get this types of problem. ठीक है. तो ये इसी तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है.